Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 8th of September 2021, Wednesday. Inspiration of the day is every moment is a fresh beginning. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. SEBI allows T plus 1 settlement cycle on optional basis. So finally, Security and Exchange Board of India has introduced an optional T plus 1 settlement cycle for the market. So after receiving so many requests from the market intermediaries, stock exchanges and other participants, SEBI has decided that SEBI will provide the फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेटलमेंट साइकिल. अब बहुत सारे हो सकता है स्टूडेंट्स जिनको ना पता हो कि ये सेटलमेंट साइकिल होती क्या है बेसिकली. और ये T+1 और जो T+2 ये दो ऑप्शन सेबी ने प्रोवाइड किए हैं सेटलमेंट साइकिल पर, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है. तो जल्दी से शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज सेटलमेंट साइकिल. सो सेटलमेंट साइकिल in stock exchanges basically represent the time for what, time period for what, time period within which any stock exchange have to settle the security transaction. So basically it is a typical time that any stock exchanges takes in order to settle any security transaction. So this is called as transaction cycle. T+1 means settlement will have to be cleared within 1 day after the actual transaction take place. तो अगर कोई सेटलमेंट साइकिल T+1 है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके विद इन 1 डे दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज़ टू बी सेटल इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज. तो अब सेबी ने क्या किया है, सेबी ने जितने भी मार्केट एक्सचेंज हैं उनको ऑप्शन दिया, या तो वो T+1 या T+2 इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं फॉर देयर सेटलमेंट साइकिल. T+1 means settlement will have to be cleared within 1 day and T+2 is settlement has to be clear within 2 day of actual transaction taking प्लेस. तो सेबी ने ऑप्शन दिया है मार्केट एक्सचेंज को, या तो आप T+1 या T+2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं. तो अब ये जिम्मेदारी स्टॉक एक्सचेंज पर है कि वो T+1 या T+2 सेटलमेंट साइकिल के थ्रू जाना चाहते हैं. अगर स्टॉक एक्सचेंजेस चाहें तो दे कैन also opt for shorter settlement cycle for any listed scripts. What is script? Script is basically a substitute or alternative to the legal tender. Basically it is any financial instrument stock exchange में shares जो कि जिनका settlement होना है, in general we call them script. Otherwise, if we go with a very formal definition of a script, so a script is a substitute or alternative to the legal tender. A bearer who hold a script authorize such holder to receive something in return. And script can be in many different form, basically in the credit form with the document certifying the debt that particular bearer or the holder is liable to have something in return. So another reference to the term script in the stock market, the listed companies on a stock exchange can sometime pay dividend in the form of additional shares, stock instead of money. So script also denote a temporary document to acknowledge a fractional shares arising from a split or स्पिन ऑफ ऑप्शन. अब स्पिन ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं, स्प्लिट ऑप्शंस क्या होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती. बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज एक अभी कह सकते हैं स्क्रिप्ट्स और लीगल टेंडर्स, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं दे इन स्टॉक एक्सचेंज दे इशू सर्टेन एडिशनल शेयर्स और स्टॉक इंस्टेंट ऑफ मनी, वी कॉल दैम स्क्रिप्ट्स. सो एनी लीगल टेंडर विद इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज विल बी कॉल्ड एज स्क्रिप्ट इन जर्नल. और उस स्क्रिप्ट के जो होल्डर्स होते हैं वो सेटल करते हैं, उनको पैसा मिलता है उसी कंपैरिजन में. तो वही सेटलमेंट, उसी पर्टिकुलर सेटलमेंट के लिए T+1 या T+2 की साइकिल सेबी ने प्रोवाइड करी है. तो 1 महीने के नोटिस देने के बाद से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो T+1 या T+2 इन दोनों में से किसी एक साइकिल को चूज कर सकता है.
And once a stock exchange chosen has any cycle, it will be applicable to the all listed scripts, all listed legal tender जितने भी उस particular stock exchange में listed scripts हैं, listed legal tenders हैं. And definitely this particular application, once particular stock exchange say NSE has chosen for T+1, so in that case all the scripts will follow this T+1 settlement cycle. On the other hand, this particular cycle will be applicable for 6 months. It means now after accepting this T+1 settlement cycle, stock exchanges cannot change this T+1 settlement cycle for at least 6 months. और इसके बाद अगर स्टॉक एक्सचेंज को ये लगता है कि नहीं ये T+1 साइकिल जो है ये हमारे लिए उतनी एफिशिएंट नहीं है या उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो 6 महीने के बाद फिर से एक नोटिस दे करके अगर स्टॉक एक्सचेंज चाहें तो दे कैन चेंज देयर सेटलमेंट साइकिल, बट फिर वो 6 महीने के लिए फिर वो बुक हो जाएगी. बट से भी क्या कहना है कि डोंट स्विच बिटवीन द सेटलमेंट साइकिल, ट्राई टू हैव वन सेटलमेंट साइकिल, बिकॉज फिर इन्वेस्टर्स को जो अनसर्टनिटी है सेटलमेंट साइकिल को लेकर के वो इंक्रीज होगी एंड दैट में फर्दर इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट विद इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज इन द country. A switch to T+1 settlement cycle is expected to benefit the domestic investors. क्यों सेबी ने ये ऑप्शन प्रोवाइड किया? आप क्वेश्चन ये था वाई सेबी हैज़ प्रोवाइडेड दिस ऑप्शन फॉर स्विचिंग बिटवीन द सेटलमेंट साइकिल, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम सेबी वॉज रिसीविंग फॉर दिस रिक्वेस्ट की जो सेटलमेंट साइकिल है T+2 से T+1 कर दी जाए और शॉर्ट कर दी जाए, जिससे कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो. तो बेसिकली सेबी इज एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी बाय स्विचिंग टू T+1 settlement cycle and trading turnover while the reducing settlement risk and broke default. तो ये सेबी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि T+1 साइकिल में अगर सेटलमेंट साइकिल में अगर मार्केट एक्सचेंजेस स्विच करते हैं तो दैट विल इंक्रीज द liquidity in the market, that will benefit the domestic investor, that will reduce the settlement risk, that will also reduce the broker default risk. अभी कैसे होगा बहुत टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझना ज़रूरी है कि T+1 सेटलमेंट साइकिल में एक्सचेंजेस स्विच करते हैं तो दे ऑल दीज आर द बेनिफिट्स दैट दे कैन गेट. लेकिन इसके बाद एक और प्रॉब्लम अराइज होती है. कौन सी प्रॉब्लम? जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट टाइम जोन. अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन के एक दिन के अंदर ही सेटलमेंट ख़त्म करना है और अगर स्टॉक एक्सचेंजेस इस पर्टिकुलर साइकिल को अडॉप्ट करते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और वेरी चैलेंजिंग फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल ऑपरेशनल चैलेंजेस ड्यू टू डिफरेंस इन टाइम जोन, स्पेशली इन US and European market or for US and European investors. So finally सेबी ने ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है स्टॉक एक्सचेंजेस को. नॉट ये जो ओनर्स है दैट इज दिस इज़ ऑन स्टॉक एक्सचेंज कि वो कौन सी साइकिल अडॉप्ट करते हैं T+1 और T+2. सो डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट एक्सचेंजेस कैन ऑप्ट ईदर of any of these two settlement cycle, and the provision of this circular come into effect from January 2022. So these are the key points that we have discussed. Now exchanges can opt for shorter settlement cycle. T+1 settlement cycle will benefit the domestic investors but will definitely bring certain new challenges and considerable operational challenges for foreign investors because of the difference in time zone. Apart from it, global banks and foreign portfolio investor will definitely find it difficult to fulfill the funding obligation within 1 day of settlement. And two different settlement cycles on different exchanges for the same script could result in flow of domestic liquidity from one exchange to another exchange. So between two market exchanges, this T+1 settlement cycle will also benefit to increase the liquidity. So these are the few benefits or challenges that stock exchanges may face while
moving towards T+1 settlement cycle. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 5. SEZ unit may get more SOP soon. So the government of India is considering a proposal. It is still at a proposal level. Proposal for what? To allow units in special economic zone to sell goods outside the zone in the country with concessional duties to help them utilize idle capacity. Abhi still it is in proposal stage, so don't think it is actually implementing. अब इस न्यूज़ को समझना है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को समझना भी ज़रूरी कि SEZ क्या होते हैं, व्हाट SEZ आर सपोज टू परफॉर्म, और जो गवर्नमेंट उन्हें अलाउ कर रही है उनकी यूनिट्स को कि वो गुड्स को आउटसाइड दी जोन भी सेल कर सकते हैं विद कंसेशनल ड्यूटीज़, इससे उन्हें क्या हेल्प मिलेगी. तो इट इज़ अ वेरी लिबरल डिसीजन दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. So SEZ is basically an area in which the business and trade law are different from the rest of the country. जो कि एक पूरे कंट्री में जो नॉर्मल कॉमन लॉ, इकोनॉमिक लॉ और बिजनेस लॉ और ट्रेड लॉ प्रिवलेंट हैं, वो उस लॉ से उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो लॉ प्रिवलेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इट मीन्स ये ऐसे जोन होते हैं, एक ऐसे एरिया होते हैं जिनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड लॉ. सो SEZ आर लोकेटेड विद इन द कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स इन जनरल, and their arms include increased trade balance, employment, increased investment, जॉब क्रिएशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो नाम से लग रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे एरिया जो कि स्पेशली ट्रीट होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लॉ, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड लॉ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लॉ. स्पेशल ट्रीट होते हैं, इसका मतलब डेफिनेटली अगर इकोनॉमी में थोड़े स्ट्रिंजेंट एक लॉ प्रेवलेंट है business or trade से related, so in special economic zone these laws will be liberal, and that is why every investors companies want to invest into these special economic zones in order to take the benefit of liberal economic, liberal business, liberal ट्रेड पॉलिसीज़ और लॉस. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, इनका जो रेस्ट ऑफ कंट्री से इनके लॉस थोड़े से अलग होते हैं, लिबरलाइज होते हैं हम ये कह सकते हैं, और बेसिकली बॉर्डर के एरियाज़ में ज़्यादा इशू इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और कंपनीज़ को इनवाइट किया जाता है या इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है कि वो आएँ और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने इन्वेस्टमेंट करें, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें, अपने सर्विस सेंटर सेटअप करें, एंड they take the benefit of tax incentives, tax holidays, tax concession of different types, electricity bill concession, and number of other concessions and tax benefit and incentives investors or the companies will receive once they agree to invest into these special economic zone. और इनका जो काम होता है, इनका जो एम होता है बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्प्रूव करना, ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव करना, इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव करना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इनके जनरल एम्स होते हैं. इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 जगह अभी फंक्शनल SEZ हैं. कहाँ कहाँ पे? सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरला में, कैंडला में, सूरत में, चेन्नई, विशाखापत्तनम, वेस्ट बंगाल, नोएडा, इन सब जगहों पर वी कैन सी द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया. अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है गवर्नमेंट ने इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अलाउ कर दिया है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को अपने जोन के बाहर विद इन द कंट्री भी सेल कर सकते हैं विद कंसेशनल ड्यूटीज़. क्यों? क्योंकि उन्हें जो उनकी आइडल कैपेसिटीज़ हैं, नोएडा की अगर हम बात करें या चेन्नई की बात करें, सूरत की बात करें, कोचीन की बात करें, सेंटा क्रूज की बात करें जो कि महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश है, इस समय पैंडमिक की वजह से डिमांड मार्केट में नहीं है, जिसकी वजह से अपने आसपास के जो लोकेशंस हैं जहाँ पर इन्हें अलाउ है गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना, वहाँ पर अब उस समय उतनी डिमांड नहीं है बिकॉज ऑफ पैंडमिक. डिमांड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है. इवन नोएडा की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज ही बहुत ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो हो क्या रहा है कि जो उनकी कैपेसिटीज़ हैं जो कि पहले यूटिलाइज होती थी फॉर प्रोडक्शन पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, अब वो आइडल पड़ी, डिमांड नहीं है.
दे जितनी भी इंस्टॉल कैपेसिटीज़ हैं दे आर आइडल. तो गवर्नमेंट उन्हें अलाउ कर रही कि नाउ यू आर अलाउड टू सेल द गुड आउटसाइड दी जोन. इट मीन्स नाउ यू कैन टेक केयर ऑफ द डिमांड not only in your special economic zone but also outside those special economic zones, so that whatever idle capacities all these industries or companies have within the SEZ, they can यूटिलाइज इट. आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मेरे न्यूज़ डिस्कशन में भी सुना होगा कि कंपनीज आर वर्किंग विद 80% कैपेसिटी, कंपनीज आर वर्किंग विद देयर 70% कैपेसिटीज़, कंपनीज आर वर्किंग विद देयर 60% कैपेसिटीज़. इसका मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी के पास 100% कैपेसिटी है, वो अगर एक महीने में 1000 गुड प्रोड्यूस कर रही है, वही उसकी 100% कैपेसिटी है, तो फिलहाल वो एक महीने में केवल 700 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, केवल 800 गुड प्रोड्यूस कर रही है. क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं. पहले वो 1000 प्री पैंडेमिक 1000 गुड्स पर मंथ प्रोड्यूस कर रही थी क्योंकि मार्केट में डिमांड थी, वो बाहर सेलिंग हो रही थी. अब चूंकि मार्केट में डिमांड नहीं है तो 700 800 प्रोड्यूस कर रही. अपार्ट फ्रॉम डिमांड, सप्लाई साइड फैक्टर भी फ़र्क डाल रहे हैं. लेबर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो कंपनीज आर नॉट एबल टू ऑपरेट विद देयर 100% कैपेसिटी. तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. फिक्स्ड असेट्स तो लगी चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो जा रही है, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वांट्स टू हेल्प देम. गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ कर दिया है. सो वी विल सून हियर अ डिसीजन अलाउइंग द SEZ टू सेल गुड्स इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया DTA on a duty foregone basis on raw material rather than current arrangement of the full custom duties, as per the newly appointed chairman of Export Promotion Council for EOUs and Special Economic Zones. And that council also held a meeting on the issue with the Department of Commerce earlier this week. तो probably बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि SEZs को अलाउ हो जाए कंसेशनल ड्यूटीज़ पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर सेल आउट करना. एंड विद दिस इंसेंटिव मैन्युफैक्चरर इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव स्पेयर कैपेसिटी विल बी एबल टू बूस्ट द प्रोडक्शन. तो अब एक्सपोर्ट के अलावा बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं दे आर इंडल्ज इन एक्सपोर्ट. सो नाउ फ्रॉम एक्सपोर्ट दे कैन ऑल्सो सेल द वेरी सेम प्रोडक्ट इन टू द domestic market or domestic tariff area. So SEZ are area within the country that have different economic regulations and are considered as a foreign territory. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि SEZ क्या होते हैं? SEZ आर द एरिया जहाँ पर हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री के कंपैरिजन में डिफरेंट रूल्स होते हैं, और बहुत अगर सिंपल फॉर्म में बोलें तो ईजी रूल होते हैं. जनरली कंसीडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी. फॉरेन टेरिटरी क्यों भाई? अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर का उस पर्टिकुलर SEZ में इन्वेस्टमेंट है तो हम ये मानते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया उस कंपनी से बिलोंग करता है, उस कंपनी की डोमेस्टिक टेरिटरी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर बिजनेस पर्पस ओनली. तो उनको हम वो सारे बेनिफिट्स देते हैं जो कि हमने कहे होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रोवाइड करने के लिए अगर वो आएंगे हमारे अंदर. यही हम करते हैं. कंट्रीज क्या करती हैं? दे एस्टैब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द बॉर्डर, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि इफ़ यू इन्वेस्ट इनटू दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इफ़ यू कम एंड प्रोड्यूस इनटू दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वी विल प्रोवाइड यू ईजी नॉर्म्स, टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स हॉलीडेज एंड अदर चीप अवेलेबल रॉ मटेरियल. तो इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे इन्वेस्ट इनटू दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और उनको बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. बट नाउ because their capacities are idle due to the pandemic shock, country or the government is allowing them to sell into the other areas as well apart from the SEZ or export. So this is the big boost that government of India is giving to all SEZ, and this is the data from manufacturing trading services in financial year 21 and financial year 22. You can just have the glimpse of it, do not need to mark up this data. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6. Drone use satellite imagery for farm insurance may be a must. तो फ्रॉडुलेंट और फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम्स को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, पकड़ने के लिए गवर्नमेंट इज़ नाउ गोइंग टू मेक इट मैंडेटरी that the drone or the satellite images will be used. तो insurance companies जो हैं they can now use drone or satellite image in order to check
whether this particular farm insurance or the agriculture insurance or the claim is actually genuine or not. For this, center an insurance regulatory and development authority, that is IRDAI, are in discussion to adopt the artificial intelligence and big data to identify manipulations of the process and reduce the delay in settlement of the claim. तो टेक्नोलॉजिकल जो रिलायंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। कैसे? एक तो सेटलमेंट साइड पर भी गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने जा रही है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑल द हर्डर्स एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। की जो सेटलमेंट नहीं होता, आप क्लेम करते हैं इंश्योरेंस, बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम किया था तो 20 से 25 दिन, इवन कई बार मंथ्स भी लग जाते हैं सेटलमेंट होने में। तो जो प्रोसेस में जो चैलेंजेस आते हैं उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट इज़ रिलाइंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स to smoothen the process of claim settlement. अपार्ट फ्रॉम इट ड्रोन और सैटेलाइट इमेजेस का भी यूज़ होगा ये चेक करने के लिए कि जो क्लेम आ रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली फॉल्स तो नहीं है, फ्रॉडुलेंट तो नहीं है। तो अब गवर्नमेंट अगर जैसे कोई फार्म एग्रीकल्चर पे कोई क्लेम आया कि हमारा एग्रीकल्चर ख़राब हो गया है बिकॉज ऑफ मोर मानसून, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स, बिकॉज ऑफ एनी फॉरेन अटैक, तो अब उसके लिए इमेज और सैटेलाइट इमेज और ड्रोन को यूज़ किया जाएगा टू चेक और टू सी द फील्ड वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। और इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा फॉर सेटलमेंट। सो अपग्रेडेशन विल बी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विल बी वॉलंटरी एंड दिस वुड सून बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द इंश्योरर। तो इनिशियली तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है और जो अपग्रेडेशन है ये इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए ऑप्शनल होंगे, बट लेटर ऑन जैसा कि गवर्नमेंट को इससे फीडबैक आएगा, ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, अपग्रेडेशंस हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो यूज़ ऑफ ड्रोन हो, चाहे वो यूज़ ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग हो, चाहे वो बिग डेटा एनालिटिक्स हो, इन सबको मैंडेटरी कर दिया जाएगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फॉल्स क्लेम एंड डिलेड इन द सेटलमेंट ऑफ एक्चुअल। जो रियल क्लेम होते हैं उनका सेटलमेंट नहीं होता, इवन कई बार ऐसा होता है जो फॉल्स क्लेम होते हैं उनका सेटलमेंट जल्दी हो जाता है जेन्युइन क्लेम्स के कंपैरिजन में। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर क्लेम असेसमेंट is being pushed to diagnose processes that are being manipulated, leading to the fraudulent claims in agriculture as well as the industrial insurance. So based initially एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है वहाँ से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट होगा। एंड डेफिनेटली अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, यूज़ ऑफ ड्रोन, यूज़ ऑफ सैटेलाइट इमेजेस, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फ्रॉड क्लेम्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो फ्रॉड क्लेम्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस किया जा सकेगा। इट विल डेफिनेटली बेनिफिट द इंश्योरर्स एज वेल एज द इंश्योरी, दोनों को ही बेनिफिट करेगा। जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए सेटलमेंट आसान हो जाएगा, सेटलमेंट की जो डीलेट साइकिल होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो कंपनीज हैं वो फॉल्स और फेक क्लेम से बच जाएंगी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। आरबीआई स्क्रैप 1 क्लिक परचेस फ्रॉम January 1। सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया on Tuesday made it impossible for the consumers to go for one-click purchase on merchant site। क्यों? क्योंकि अब जो कार्ड का टोकनाइजेशन होता था उसको आरबीआई बंद करने जा रही है। कब से? January 1, 2022 से जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन हो रहा था वो अब बंद हो रहा था। जो 1 क्लिक परचेस होता था, 1 क्लिक पेमेंट, 1 क्लिक परचेस, वो सब अब फिलहाल बंद होने वाला है एमिड द सिक्योरिटी रीजन। टोकनाइजेशन इज यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेयर एक्चुअल कार्ड डिटेल्स keyed in are replaced by the random digit, and this way consumer is protected by preventing the leakage of their sensitive information. But as of now RBI has decided to
end this tokenization of credit cards, and definitely after this there will be no one click payment, no one click purchase on any merchant site from the very next year. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, टेलको पैकेज एट कैबिनेट टुडे। तो बहुत टाइम से इस पर्टिकुलर पैकेज पर डिस्कशन चल रहा था, तो फाइनली ये इशू अब कैबिनेट में चला गया। यूनियन कैबिनेट इज लाइकली टू डिस्कस अ रिलीफ पैकेज फॉर फाइनेंशियली स्ट्रेस टेलीकॉम सेक्टर ऑन वेडनेसडे। तो आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज पर डिस्कशन होगा और इस बात के चांसेस हैं कि बहुत ही जल्द अब गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन फेस कर रहा है, स्पेशली वोडाफोन जैसी कंपनी, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न AGR ड्यूज़ है। AGR ड्यूज़ की वजह से दो सारी ही कंपनीज इस समय टेलीकॉम, अगर जियो को छोड़ दिया जाए तो एयरटेल इज़ ऑल्सो फेसिंग द वेरी लार्ज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस AGR ड्यू। तो गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर अ रिलीफ पैकेज टू all these telecom companies, especially telecom sector, for their revival. तो आज discussion होगा, and as a part of package there could be some relaxation on payment of levies to the government, including 1 year moratorium period on spectrum installed due इन अप्रैल 22। तो स्पेक्ट्रम जो इंस्टॉल हो रहा है उसकी जो फ़ी पेमेंट है उस पर मोरेटोरियम गवर्नमेंट दे सकती है, AGR ड्यू पर मोरेटोरियम दे सकती है। इसके अलावा बहुत सारी जो अदर फीस हैं, यूनिवर्सल लाइसेंसिंग चार्ज, उस पर भी कई सारे रिलीफ दिए जा सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज़ को, जिससे कि जो मोनोपोली की तरफ जो टेलीकॉम कंपनी बढ़ रही है, जहाँ पर जियो का काफ़ी सारा डोमिनेंस है इस समय, उसको रिड्यूस किया जा सके और वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, MTNL जैसी कंपनीज का एग्जिस्टेंस बनाकर रखा जा सके। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं व्हाई गवर्नमेंट इज सो कीन टू save this telecom sector, financially stressed telecom sector. Why it is important for telecom sector to have the multiple participants, to have the multiple companies? Why we cannot have only Jio? It is good Jio is providing us a very concessionary services, तो क्यों नहीं जियो को ही केवल रखा जाए, क्यों नहीं हटा दिया जाए एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, सबको क्यों नहीं? अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है कंपटीशन को, दे मस्ट गो। व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू कीप ऑल ऑफ देम? तो कमेंट सेक्शन में लिख करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आज आप मुझे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, KN to drop case against India accept $1 billion offer। सो फाइनली बहुत बड़ा झगड़ा KN इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। KN Energy PLC is now ready to withdraw all the cases against government of India it had slapped in different countries। So जो 1.2 बिलियन का आर्बिट्रेशन अवार्ड था, अब फाइनली कंपनी एग्री कर गई है कि वो जितने भी केसेस जिसने इंडिया के अगेंस्ट फाइल किए थे उसको अब वापस ले लेंगे। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेटलमेंट अंडर द रीसेंट लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो क्लॉज रिमूव कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का क्लॉज रिमूव कर दिया। अब इंडिया में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट और अप्लाई एनी टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली। और उसी के तहत गवर्नमेंट का ये एम भी था कि जितने भी जो टैक्सेशन के इश्यूज चल रहे हैं KN के साथ, वेदांता के साथ और अदर कंपनीज़ के साथ, वो सारे इसी पर्टिकुलर डिसीजन के बाद रिजॉल्व हो जाए। तो KN का जो डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व हो रहा है तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो फाइनली KN एक्सेप्ट $1 billion ऑफर एंड एग्री टू take all its cases back, and it will get a refund of totaling 7,900 crore, approximately $1.06 billion, once it withdraw all the litigations and enter into an agreement with government of India। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, China +1 sees India's textile sector stitching a revival। So despite container shortage and a shipping crisis that we have discussed in yesterday's news, India's textile industry has managed to weave a revival story। तो पैंडेमिक के सिचुएशन में इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है फाइनली वो रिवाइवल की स्टेज पर आ गया। अगर आप थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में जानते होंगे तो यू मस्ट बी नोइंग, बिकॉज ऑफ सो मैनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फ्रॉम बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर जो हमेशा से बहुत पॉपुलर रहा है, हिस्ट्री में भी अगर आप देखें उठा करके, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे उस समय भी इंडिया टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। और इवन एशियन टाइम ऑल्सो, कल्चर के जो सिविलाइजेशन के टाइम में भी
textile was very popular business in India. But later on, because of different operational challenges, because of so many competition, इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, या ये हम कहें कि स्टैंड नहीं कर पाया विद इंटरनेशनल कंपटीशन. बट नाउ, despite of the container shortage and shipping crisis, all these are affecting this sector, India's textile industry has managed to weave a revival story. It is in a sweet spot right now, largely because of the China plus one policy of European and US apparel brands and the ban on Chinese cotton by USA because of this pandemic issue. तो एंटी चाइना सेंटिमेंट हम ये कह सकते हैं, एंटी चाइना सेंटिमेंट ने बहुत ज़्यादा इंडिया को बेनिफिट दिया है, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर को. यूएसए ने चाइना का कॉटन बैन कर दिया, एंड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट, दैट इज RMG, of all textile increased to 67% during the first 5 months of current fiscal year, that is showing a sign of recovery. And this is the data फार फ्रॉम प्री कोविड लेवल, ऑगस्ट बूस्ट, ये हम देख सकते हैं. एंड डेफिनेटली डू नॉट नीड टू मर्क अप दिस फाइनेंशियल ईयर में रेडीमेड गारमेंट का जो एक्सपोर्ट था इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिलियन, इट वाज 6.8, जो कि प्री पैंडमिक था. पैंडमिक में की वजह से 3.6 हो गया फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि फिर से 6 पर पहुंच रहा है. एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड कि वी विल डेफिनेटली अचीव द प्री कोविड लेवल एंड बियॉन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, क्योंकि एंटी चाइना सेंटिमेंट्स और जो अदर इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, दे आर प्लेइंग रोल इन फेवर ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, please write in comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.